Hi everybody, this is Professor Tufail from University of Sinnar campus Badin, and I'm speaking to you from the platform of the Paragon Academy Badin. I welcome you all in this free online English language teaching course. Today we are to resume our 23rd session of this language class, and in the last 22 sessions, we have covered multiple areas of language learning. They are from semantics, syntax, and some components of phonetics, and they have equally contributed for our proper understanding of a language and how language works and how can we better understand this thing. So in today's class we would talk about adverb, kinds of adverbs, degrees of adverbs, and how can we use or how can we involve this component of a language and what are its function in a language and what happens when adverbs comes in a sentence to change its meaning. So language is a systematic source of communication, and when we talk about the functional grammar, then we talk about the functions of the components we use in language, that is a organized and organic system, and each component has its own contribution and its own function. Being a user of language, we need to understand its functions so that we can better incorporate this language in our learning system and for the development of this. पिछले जो क्लासेस हमने यूज़ किए थे उसमें मैंने आपको कैटेगरिकली बताया था कि हम जो है इस क्लास को जिस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत सी चीज़ों को हम जो है वो साथ लेकर चल रहे हैं। पहली बात ये कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तक हम पहुँचें, खुसूसन स्कूल्स के या जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। फिर हम सिस्टमेटिक वे में उस टॉपिक्स को एडवांस लेवल पे भी डिस्कस करते हैं ताकि जो एडवांस यूज़र्स हैं दे कुड गेट बेनिफिट ऑफ दैट। फिर जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो आप डिफरेंट जॉब वगैरह के टेस्ट दे रहे होते हैं या आप प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट जब दे रहे होते हैं तो वहाँ पे किस तरह की क्वेश्चनिंग्स होती हैं, तो उसको भी जो है हम फोकस करके जो है ना वो इसमें लेकर चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली टारगेट ये है कि इस क्लास को थोड़ा वर्सेटाइल और डायनामिक रखा जाए ताकि मैक्सिमम और इवन वो स्टूडेंट्स जो कुछ फेडरल में या मुख्तलिफ जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, सो दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द बेसिक्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू टेक एनी टेस्ट these classes would help them conceptually, because the first thing is that language must be learned conceptually, and simple parrot learning or that GMT method, learning grammar, etc. This won't work. So you need to be equally focused on these three areas. Being a user of language, that you should have a good deal of semantics. Semantics focuses on your vocabulary, the deal of words, the collection of words, what you have to communicate your ideas. Number two thing is the phonetics. Phonetics is very important because the way you pronounce words, it matters a lot. It is natural that your L1 would impact your sound or your pronunciation. ये कुदरती बात है कि जो आपकी अपनी ज़बान है, L1 से मुराद लैंग्वेज 1 जो आपकी मदर टंग है, वो आपके साउंड सिस्टम पे असरअंदाज होगी। But what is the quality of your language, the beauty of your language, and the achievement on your part is that आपकी achievement ये है
कि आप जो है अब उनको इस तरीके से प्रोनाउंस करें कि आपकी L1 जो मदर टंग है वो दूसरी ज़बान के साउंड सिस्टम पर असरअंदाज ना हो। तो उसके लिए जो फ़ोनेटिक्स के मैंने आपको रूल्स बताए थे शुरू वाली क्लासेस में, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट द बेसिक साउंड्स यू वुड बी एबल टू कम्युनिकेट or to speak with the level that it could be standard. If not, we don't mean to be a queen English. ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो अहम बात है। अफ्रीकन राइटर चुनाय से भी बड़ा खूबसूरत राइटर गुजरा है। उसने जब अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया था, चूँकि वो अफ्रीकन थे तो उन्होंने जब अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया था तो उसको किसी ने कहा था कि जी आप जो अंग्रेज़ी लिखते हैं वो मयारी या स्टैंडर्ड नहीं है। तो अशरफी ने ये कहा था कि जी मैंने अंग्रेज़ी को नहीं कहा था कि मेरे मुल्क में आ जाओ, अब जब आ गई है तो अंग्रेज़ी को मेरे एक्सपीरियंस का बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बियर द बर्डन ऑफ माई एक्सपीरियंस, कि अंग्रेज़ी को अब मेरे एक्सपीरियंस का बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जब वो बात वो कह रहा था चुनाव से भी, तो उसका एक्चुअल जो मकसद ये था कि लैंग्वेजेस जब दूसरे एरियाज़ में जाती हैं तो वो ज़ाहिरी बात है कि वहाँ की लैंग्वेजेस के जो नेचुरल साउंड सिस्टम हैं वो उन पे असरअंदाज होते हैं। और ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबको अंग्रेज़ियों की तरह बोलना चाहिए। आप किसी अंग्रेज़ को बोलो कि वो सिंधी जो है ना वो सिंधियों की तरह बात करके दे, या पंजाबी की तरह बोल कर दिखाए, ये इट्स नॉट पॉसिबल। साउंड सिस्टम की एक अपनी साइकोलॉजिकल और एक न्यूरोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं। लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग, हमारा एक बेनिफिट है कि बेसिकली हमारी जो लैंग्वेजेस हैं सिंधी या उर्दू या पंजाबी या जो हम बोल रहे हैं, इसमें साउंड बहुत ज़्यादा है। इसके लिए वी हैव अ वंडरफुल साउंड कैपेसिटी। आप अपने वोकल आर्गन से बेहतरीन साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यही चीज़ आपको इसके काबिल बनाती है कि कम समहाउ आप जो है ना वो लैंग्वेजेस अंग्रेज़ी को आप प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कर सकते हैं। दैट विल बी द ब्यूटी ऑफ योर लैंग्वेज लाइक दैट। So that is where we stand, and then we talked about syntax. Syntax आपको लैंग्वेज के अंदर जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा काम देता है। तो आप वोकैब इकट्ठी करें, अपने तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर रखें और अपने सिंटेक्स को दुरुस्त रखें। यू विल बी वंडरफुल यूजर्स ऑफ दिस लैंग्वेज। फिर अब सिंटेक्स में हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है दैट इज़ डिज़ाइन फॉर एडवर्ब। बिफोर गोइंग टू दिस मटीरियल, मैं थोड़ा एडवर्ब का कंसेप्ट में पहले आपको बता चुका हूँ कि नाउन चीज़ों पे नाम रखता है, लेकिन जो भी शनाख्त या आइडेंटिफिकेशन होती है वो नाउन के थ्रू होती है। हमने चीज़ों पे नाम रखे। अब जब नाउन की वजह से जो लैंग्वेज में रिपीटेशन पैदा हो रही थी तो प्रोनाउन आ गया था। प्रो का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, दैट्स प्रोनाउन, दैट्स गोइंग टू सपोर्ट नाउन। नाउन की मदद कर रहा है। नाउन का मसला क्या है कि वो रिपीटेशन करता है कि मैं अली के पास गया, अली घर में मौजूद था, अली ने दरवाज़ा खोला, अली ने चाय पिलाई। अब हम कहेंगे मैं अली के पास गया, वो घर में मौजूद था, ही वॉज प्रेजेंट। ही कौन? अली। हिज हाउस वॉज गुड। हिज कौन? अली का। आई रिस्पेक्ट हिम। हिम कौन? अली को। So we don't repeat Ali every time and we bring a pronoun. And the job of pronoun is that to avoid this repetition in language and bring variety. Variety बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की खूबसूरती होती है। फिर adjective noun pronoun का वकील है। इसके बारे में जो भी आपको मालूमात देता है वो adjective देता है। अब कोई भी नाउन उठा लें, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा that will be adjective. टीचर है, एक नाउन है। अब इसके बारे में जो भी मज़ीद आपको इंफॉर्मेशन देगा that will be adjective. Good teacher, experienced teacher, cooperative teacher, kind teacher, polite teachers, honest teachers, dedicated teachers, hardworking teachers, cooperative teachers, sympathetic teachers, trained teacher, और इस तरह के बहुत सी जो है वो चीज़ें हैं जो उस टीचर के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ले लें तो उसी को भी आप जितने भी नाउन जो है ना वो मुझे कमेंट्स मेरी जो है ना वो स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो रहे, तो मैं आपके कमेंट्स को तो फॉलो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन होप के सेशन इज़ गोइंग वेल एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी। तो हम जो है ना वो एडजेक्टिव्स पे मैं कह रहा था कि जब उस पे आते हैं तो स्टूडेंट्स को अगर आप क्वालिफाई कराएं, स्टूडेंट्स भी एक नाउन है,
अब इसके बारे में आप कितने भी इसको एडजेक्टिव दें कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ओबीडिएंट एंड सिंसियर एंड कमिटेड एंड डेडिकेटेड एंड डिवोटेड एंड स्टूडियस, तो ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। अब नाउन ने नाम रखे, प्रोनाउन मुतबादिल आया, एडजेक्टिव आपको बताता है कि वो है नाउन, प्रोनाउन है कैसा। अब जब हम काम पे आते हैं, देन वी टॉक अबाउट वर्ब। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ब इज दैट, वर्ब का ये काम है कि वो आपको बताए कि काम क्या हो रहा है। अब देखिए जो भी काम होता है वो वर्ब के ज़ुमरे में होता है। अब काम कैसे होता है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवर्ब। लेकिन पहले मैंने आपको इनिशियली कंसेप्ट एडवर्ब का ये दिया था कि वो पहले हमें ये बताता कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। क्योंकि इसके नाम पे अगर आप देखें ये ऐड प्लस वर्ब है, दैट्स गोइंग टू ऐड समथिंग टू वर्ब, ये वर्ब में ऐड करने जा रहा है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर एडवर्ब की डोमेन बहुत ज़्यादा होती है। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन प्रोनाउन तक महदूद हो जाता है, लेकिन एडवर्ब की जो डोमेन है वो इनसे बहुत ज़्यादा होती है। एडवर्ब जो है ना, एक वर्ब की भी मदद करेगा, उसको क्लियर करेगा। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि अली पढ़ रहा है, अब पढ़ तो रहा है, कैसे पढ़ रहा है? अब ये कैसे का जो सवाल है ना, ये एडवर्ब का सवाल है। ये अच्छा पढ़ रहा है, ये बुरा पढ़ रहा है, ये ख़राब पढ़ रहा है, ये बेहतर पढ़ रहा है, ये अच्छा बुरा ख़राब बेहतर। देखिए ये अच्छा बुरा ख़राब बेहतर अली के बारे में नहीं बता कह रहा, अली के पढ़ने के बारे में बता रहा है। अब पढ़ना एक वर्ब है, ठीक है, अली एक नाउन है। अगर आपको कि अली इज़ गुड, अली अच्छा है, तो आप अली को जब सपोर्ट करोगे तो फिर एडजेक्टिव आएगा, वहाँ पे एडजेक्टिव का ज़िम्मा है नाउन को मदद करना, ठीक है। लेकिन जब अली के पढ़ने के अमल की बात हो रही है, ये डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर है? अच्छा डॉक्टर है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि डॉक्टर नाउन है। लेकिन डॉक्टर इलाज कैसे कर रहा है? जी अच्छा इलाज कर रहा है। हम देखें उर्दू में पहले इसका जब आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको अंग्रेजी में या कहीं भी इस टर्म को कैरी करना मुश्किल नहीं है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अच्छा इलाज कर रहा है, अब यहाँ पे अच्छा जो है ना वो एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के बारे में आप नहीं बात कर रहे, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट अच्छा है। तो ट्रीटमेंट करना, जो इलाज करना, ये वर्ब है, ये एक एक्शन है। अब एक्शन कैसे हो रहा है, ये वर्ब की जिम्मेदारी होती है। तो एडवर्ब बुनियादी तौर पे वर्ब को क्लियर करता है, वर्ब को मदद करता है, लेकिन यहाँ तक महदूद नहीं रहता। फिर आगे चल के एडवर्ब एडजेक्टिव की भी मदद करता है, और वह जो है ना वो ये एडजेक्टिव दूसरे एडवर्ब की भी मदद कर देता है। फिर यही एडजेक्टिव दूसरे जो है ना वो जाकर प्रीपोजिशन की मदद करता है, फिर यही एडजेक्टिव जाकर कंजक्शन की मदद करता है। तो लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो अप्रोच है या ज़्यादा जो एक्सेस होता है वो जो ना डोमेन है वो इस एडवर्ब का है। तो इस एडवर्ब पे इन तमाम जो डोमेन्स को आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ एडवर्ब प्लेज रोल इन सेंटेंस एंड हाउ इट कुड बी। अच्छा, अक्सर तौर पे जो एडवर्ब बनते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ जब हम एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनते हैं अक्सर, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तमाम के साथ आप एल वाई लगाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें भले एल वाई न लगा हो, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो एडवर्ब का कर रहा होता है। तो अक्सर तौर पे हम एल वाई लगा कर एडवर्ब बनाते हैं, लेकिन तमाम के साथ नहीं लगता, ये जहन में रखिएगा। तो नाउ लेट्स स्विच टुवर्ड्स दिस मटेरियल ऑफ टुडेज क्लास, हाउ एडवर्ब फंक्शंस इन अ लैंग्वेज। वी विल अंडरस्टैंड इस कंसेप्ट, फिर हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स पे बात करेंगे, उसके बाद हम डिग्रीज ऑफ एडवर्ब पे बात करेंगे। एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज सिर्फ एडजेक्टिव की नहीं होती, डिग्रीज एडवर्ब्स की भी होती हैं। तो हम इन पे कैटेगरी बात करेंगे, देन वी वुड स्विच टुवर्ड्स पर्टिकुलर सेमेंटिक्स। सो प्लीज़ well, now see, this adverb is a word which is to the meaning of a verb, adjective or another adverb. Example, या तो ये वर्ब की मदद करता है, या दूसरे एडजेक्टिव की मदद करता है, या दूसरे एडवर्ब की मदद करता है। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, वसीम वर्क फास्ट। वसीम ने काम किया, कैसे किया? फास्ट। अच्छा, एक बात यहाँ पर बड़ी क्लियर बता दूँ, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से एडवर्ब हैं उनके साथ एल वाई लगाया जाता है तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। तो अब ये जो हमारे यहाँ एक है कि फास्ट को फास्टली कहा जाता है। याद रखिएगा, अंग्रेज़ी में फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं है, दैट इज़ ब्लंडर। अक्सर लोग कहते हैं कि ही वर्क्स फास्टली, अंग्रेज़ी में फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। हाँ, क्योंकि लोगों ने बहुत से वर्ड जो है ना सुने, क्विक से का एडवर्ब क्विकली बना, स्लो का एडवर्ब स्लोली बना,
वीक से इन्होंने वीकली बनाया। तो इसी तरीके से फिर फास्ट से लोगों ने फास्टली बना दिया। ये बहुत गलत है, मिस्टेक है, ब्लंडर है, नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ये अक्सर टेस्ट में आता है और हमारे साथी जो है ना वो थोड़े जज्बात में होते हैं, तो वो ही जल्दी में फास्टली को टिक करके बैठ जाते हैं। ये आई वॉश होता है। आई वॉश ये होता है कि जो आपको आँखों को टेस्ट में आपकी आँखों को चकमा देने वाला, इसके लिए एक इडियम होता है आई वॉश, AYEI वॉश, WASH वॉश, जो हम तो ये आई वॉश होते हैं टेस्ट के अंदर, जो आपको जो है ना थोड़ा भटकाने के लिए या थोड़ा जो है ना आपको जो है ना चक्कर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये फास्टली का आई वॉश टेस्ट में अक्सर होता है, इनको केयर क्या करें। अस्मा राइट स्लोली, अस्मा लिखती तो कैसे स्लोली। स्लोली इज एडवर्ब हियर, दैट्स गोइंग टू से समथिंग अबाउट राइट, कि राइट का काम कैसे हो रहा है। ही इज़ एक्सेप्शनली गुड। ओके, अब देखिए अगर मैं कहूँ कि ही इज़ गुड, गुड एडजेक्टिव है। अच्छा तो है, कैसा अच्छा है। अब हम यहाँ पे टर्म यूज़ करें एक्सेप्शनली गुड। एक्सेप्शनली गुड का मतलब होता है कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट इज़ क्वालिटी ऑफ दैट। ओके, वी से दैट इज़ एक्सेप्शनली गुड एंड ही इज़ एक्सेप्शनली गुड। तो ये जो एक्सेप्शनली है ये एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है गुड को। मैं दोबारा बता दूं कि मेरे पास स्क्रीन पे आपके कमेंट्स अपेयर नहीं हो रहे। ओके, तो मैं नहीं जो ना आपके कुछ इस तरह के सवालात को फॉलो नहीं कर पाऊँ शायद। ही प्लेज वेरी फास्ट, वो खेल तो रहा है लेकिन कैसे खेल रहा है, फास्ट। ओके, ही प्लेज फास्ट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर देखें, जिस तरह ऊपर इस फास्ट ने वर्ब को क्वालिफाई किया, स्लोली ने वर्ब राइट को क्वालिफाई किया, एक्सेप्शनली जो एडवर्ब था उसने गुड एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। गुड तो है लेकिन कितना गुड है, एक्सेप्शनली गुड है। ये एक्सेप्शनली एडवर्ब था जिसने गुड एडजेक्टिव की मदद की। अब नीचे आते हैं कि ही प्लेज वेरी फास्ट। अब अगर इस सेंटेंस को देखें कि ही प्लेज फास्ट, तो ये फास्ट क्या है, ये एडवर्ब है। किसकी बात कर रहा है, प्ले की बात कर रहा है, वर्ब की। कौन सी चीज़ फास्ट हो रही है, वर्ब, प्ले फास्ट हो रहा है। अच्छा, फास्ट तो हो रहा है लेकिन कितना फास्ट हो रहा है, वेरी फास्ट। वेरी जो है वो एडजेक्टिव है, वो जो है ना वो एडवर्ब है। तो इसमें वेरी जो है ना एक एडवर्ब, ये दूसरे एडवर्ब की मदद कर रहा है। फास्ट जो कि खुद एडवर्ब है, वेरी फिर एडवर्ब की जाकर मदद कर रहा है कि वो फास्ट तो खेलता है लेकिन कितना फास्ट खेलता है, तो वेरी फास्ट। समटाइम एन एडवर्ब आल्सो मॉडिफाइज ए प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शन। कभी कभार ये एक जो है ना वो प्रीपोजिशन और कंजक्शन की भी मदद करता है। द स्टोन फेल एग्जैक्टली ऑन टू द हेड ऑफ द बॉय। अब पत्थर सीधा बच्चे के सर पे गिरा। द स्टोन फेल, गिरा तो सही लेकिन कैसे, एग्जैक्टली ऑन टू द हेड ऑफ द बॉय, एग्जैक्टली ऑन टू द हेड ऑफ द बॉय। अब पत्थर सीधा बच्चे के सर पे गिरा, एग्जैक्टली ऑन टू। ये जो एग्जैक्टली है ना ये एडवर्ब है, किसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है, ऑन टू प्रीपोजिशन के बारे में। ही इज हीटेड सिंपली बिकॉज ही इज क्रूअल। ओके, so I think that is this is not heated but hated. He is hated simply because he is cruel. इससे नफरत इसलिए की जाती है चूँकि वो जालिम है। He is hated simply, क्यों ऐसे की जाती है, because। अब देखिए सिंपली किसके बारे में बता रहा है, किसको मदद कर रहा है, because। इससे इसलिए नफरत की जाती है चूँकि, because he is cruel. Now cruel, that's an adjective. Because he is cruel, he is hated. So he is hated simply. ये जो simply यहाँ पे है ये जो है ना क्वालिफाई कर रहा है because को। ओके, because कंजक्शन को। तो अब आप देखें इन सेंटेंस के अंदर यहाँ पे फास्ट ने वर्ब को मदद की। ये फास्ट जो कि एडवर्ब था उसने वर्ब की मदद की। अस्मा राइट स्लोली, इसमें स्लोली एडवर्ब है जो किसकी मदद कर रहा है, राइट वर्ब की। ही इज एक्सेप्शनली गुड, इस सेंटेंस के अंदर जो एक्सेप्शनली है दैट इज एडवर्ब, और ये किसकी मदद कर रहा है, गुड एडजेक्टिव की। ही प्लेज वेरी फास्ट, ये फास्ट जो है ये एडवर्ब है, और ये फास्ट एडवर्ब किसकी मदद कर रहा है, वर्ब प्ले की।
He plays very fast. Fast is adverb that's going to clear this play. But कितना फास्ट? वेरी फास्ट. ये जो वेरी है ये एक और एडवर्ब है जो कि फास्ट एडवर्ब की मदद कर रहा है. सो इन दिस सेंटेंस you see that this he plays very fast. One adverb is going to help another adverb. Okay, तो एडवर्ब ने वर्ब की मदद की, एडवर्ब ने वर्ब की मदद की. इस सेंटेंस में एडवर्ब ने गुड एडजेक्टिव की मदद की, इसमें एडवर्ब वेरी ने दूसरे एडवर्ब फास्ट की मदद की, और इसमें एडवर्ब एग्जैक्टली ने ऑन टू प्रीपोजिशन की मदद की, और यहाँ पे एडवर्ब सिंपली ने बिकॉज कंजक्शन की मदद की. तो अब इस सेंटेंस के अंदर अगर इफ़ वी गो फॉर द कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेशंस ऑफ एडवर्ब, अगर हम एडवर्ब की और कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेशन बनाएं तो वी विल फाइंड दैट एडवर्ब कैन इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ ए स्पीच. अ वर्ड क्लास आर लेक्सिकल यूनिट एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन. तो अब हम जब कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेशंस पे प्रोनाउन इस एडवर्ब पे गए हैं, then we say that it can add something to the meaning of any part of a speech or word classes or lexical unit. ठीक है, आप इसको पार्ट ऑफ स्पीच कहें, आप इसको वर्ड क्लासेस कहें, आप इसको लेक्सिकल यूनिट कहें, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, इन सब की मदद कर सकता है एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर. और जहाँ तक नाउन और प्रोनाउन की बात है तो उसकी मदद करना जो है ना वो जिम्मा जो है वो एडजेक्टिव का है. नाउन और प्रोनाउन को हमेशा एडजेक्टिव मदद करता है. बाकी इसके अलावा जो है उसमें जो है अपना एडवर्ब जो है ना मदद कर सकता है. लेकिन जब नाउन प्रोनाउन की बात आती है देन एडजेक्टिव डजंट वर्क ऑन दैट. ओके, नाउन प्रोनाउन कोई मदद करना ये एडजेक्टिव की जिम्मेदारी है, एडवर्ब उधर उसको जाने नहीं देता. अब देयर आर सम ऑफ दीज एग्जांपल्स. ओके, आई वर्क स्लोली. हियर स्लोली इज एडवर्ब, वर्क को क्वालिफाई कर रहा है. ही कम्स डेली, डेली इज एडवर्ब, कम को क्वालिफाई कर रहा है. ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आउटसाइड एडवर्ब है जो स्टैंडिंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वो कहाँ खड़ा है? बाहर. शी वर्क्स स्लोली, दे वेट डेली, अली इज टीचिंग वेल. अब देखिए ये अपना अली इज टीचिंग वेल, अली तो पढ़ा रहा है लेकिन कैसे पढ़ा रहा है? ही इज ए टीचिंग वेल. वेल इज एडवर्ब जो बता रहा है कि टीचिंग का काम कैसे हो रहा है. अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो ये आपके सामने एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंस देखें. When you say that Ali is a fast bowler, यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बाउलर. बाउलर इज ए नाउन. अली इज ए फास्ट बाउलर, बाउलर इज ए नाउन, और जो नाउन की मदद करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. और अली बाउल फास्ट, अली तेज बॉलिंग कराता है, ये बाउल वर्ब है और जो वर्ब की मदद करेगा वो एडवर्ब है. अब देखिए इस ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर फास्ट एक जगह पर एडजेक्टिव है, दूसरी जगह पर एडवर्ब है. अली इज अ फास्ट बॉलर, अली बाउल्स फास्ट. अली इज अ फास्ट बैट्समैन. ओके, हियर फास्ट इज एडजेक्टिव. बैट्समैन जो कि नाउन है, कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड्स को मिलाकर नाउन बनाया गया है, ये कंपाउंड नाउन बनता है बैट्समैन. और जिस तरीके से हम कहते हैं अपना क्लासरूम, क्लासरूम, दो नाउन्स को मिलाकर हमने बनाया दिस कंपाउंड नाउन. बैट्समैन, अली इज ए बैट्समैन, फास्ट बैट्समैन, ये फास्ट एडजेक्टिव है जो बैट्समैन नाउन की मदद कर रहा है. अली बैट्स फास्ट, अली तेज जो है बैटिंग करता है. ओके, सो एक बात यहाँ पे बॉलिंग की आ गई है तो अक्सर जो है ना ये एक वर्ड यूज़ होता है हमारे, अक्सर लोग कहते हैं कि ही इज़ ए क्लीन बाउल्ड. तो लोग जो है ना कहते हैं कि ही इज़ क्लीन बॉल्ड, तो वो समझते हैं कि क्लीन बॉल जो है ना ये है अक्सर. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. अक्सर आप बहुत से लोगों से पूछेंगे जब क्रिकेट में डायरेक्ट जो बॉल जो है ना, गेंद जो है ना वो विकेट में जाकर लग जाए तो हम इससे कहते हैं कि दिस इज़ ए क्लीन बाउल. तो लोग समझते हैं कि दिस BOLD बोल्ड. ओके, बेसिकली दिस बाउल्ड. ओके, बाउल्ड होता है बॉलिंग कराना. इसे क्लीन बाउल्ड मीन्स के डायरेक्ट जो उसने बॉल कराया दैट हिट दैट द विकेट. दिस इज क्लीन बाउल्ड, नॉट बोल्ड. प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, often people do this type of things. So this is not a clean bowled, it's a bowled. और यही मसला जो लोड शेडिंग का होता है, जो शेड होता है जिसको लोग शटिंग कहते हैं, लोड शटिंग कहते हैं. सिंपली डोंट प्रोनाउंस इट इज लोड शेडिंग, दिस लोड शेडिंग एंड दिस अ क्लीन बाउल्ड. वेल
सो ही इज़ बाउलिंग फास्ट, ही बैट्स फास्ट, यही फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे फास्ट जो ना एडजेक्टिव है। अली इज़ वेल, अली अच्छा है, ही इज़ अ वेल, ये वेल एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अली की बात कर रहा है या ही की बात कर रहा है। जो भी नाउन प्रनाउन की मदद करेगा दैट्स एडवर्ब। ही टीचेस वेल, वो अच्छा पढ़ाता है। हेयर यू लुक दैट दिस टीचेस, वो पढ़ाता तो है, कैसे पढ़ाता है? ही टीचेस वेल, वो अच्छा पढ़ाता है। दिस वेल इज़ एडवर्ब, क्योंकि ये वेल किसकी बात कर रहा है? जो ना वर्ब की बात कर रहा है। हाउ दिस वर्क इज़ गोइंग ऑन, ओके, ये काम कैसे हो रहा है। सो टीच इज़ अ वर्ब, और ये कैसे वर्ब हो रहा है? वेल। यहाँ पे वेल जो ना एडवर्ब है, जो कि टीच की बात कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे वेल एडजेक्टिव है, जो कि ही प्रोनाउन या अली नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि आप देखें कि शी इज़ हर्ट, शी इज़ हैप्पी, वो उदास है, नाराज जो ना मायूस है या खुश है। यहाँ पे हैप्पी या हर्ट जो है ना ये एडजेक्टिव्स हैं। शी वेंट हैप्पीली, नाउ हैप्पीली इज़ एडवर्ब। तो आप यू कैन फाइंड द डिफरेंस कि किस तरीके से जो है ना एक ही सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बनता है और वही दूसरी जगह पर जाकर एडवर्ब बन जाता है। दीज आर द टेक्निकलिटीज़, और हमने देखना ये है कि वो मदद किसकी कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है। दैट इज़ द एक्चुअली वे वी कैन यूज़। अब जिस तरीके से आपने एडवर्ब कैन क्वालिफाई टू एन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज़ अ वेरी पुअर, ओके। अब यहाँ पे देखें, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ये जो वेरी है ना, ये इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है। दिस इज़ एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट इज़ एडजेक्टिव, और वेरी जो है ना दैट इज़ एडवर्ब। ही इज़ अ वेरी पुअर पर्सन, ही इज़ अ वेरी पुअर, ओके, पुअर एडजेक्टिव है, वेरी जो है ना वो एडवर्ब है। यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव की मदद कर। अली वर्क्स हार्ड, यहाँ पे जो है ना हार्ड वर्ब की मदद कर रहा है। ही रन्स फास्ट, रन फास्ट रन की मदद कर रहा है। आई टीच स्लो, यहाँ पे स्लो टीच वर्ब की मदद कर रहा है। दे रन फास्ट, इस तमाम सेंटेंस के अंदर एडवर्ब वर्ब की मदद कर रहा है। कम टू थर्ड पॉइंट, अली वर्क्स वेरी हार्ड। अब एडवर्ब की मदद करने जा रहा है। हार्ड तो है, कितना हार्ड करता है? वेरी हार्ड। नाउ दिस एडवर्ब इज गोइंग टू हेल्प अनदर एडवर्ब। ही रन्स वेरी फास्ट, फास्ट इज एडवर्ब, वेरी इज अगेन एडवर्ब। एडवर्ब की मदद कर रहा है। द स्टोन फेल एग्जैक्टली ऑन टू द हेड ऑफ द बॉय, एग्जैक्टली ऑन टू, यहाँ पे एडवर्ब प्रीपोजिशन की मदद कर रहा है। आई केम लेटर बिफोर दे हैड लेफ्ट, मैं बाद में आया था, इससे पहले वो जा चुके थे, कंजक्शन की मदद कर रहा है, ओके। आई हैड डायरेक्टली कॉल्ड हिम बिफोर ही स्लेप्ट, ओके, डायरेक्टली बिफोर ही स्लेप्ट, सो डायरेक्टली is going to call this before he slept. In this way you can put these conjunctions into अब इसमें देखें कि एडवर्ब जो है ना इन तमाम की एडवर्ब वर्ब की मदद, एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव की मदद कर रहा है, एडवर्ब दूसरे वर्ब की मदद कर रहा है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की मदद कर रहा है, एडवर्ब दूसरे प्रीपोजिशन की मदद कर रहा है, और एडवर्ब दूसरे कंजक्शन की मदद कर रहा है। इन सब को जो है ना वो एडवर्ब मदद कर सकता है। बहुत ज़्यादा जो है स्कोप है लैंग्वेज में इसका जो है। अब जिस तरीके से डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपने पढ़ी थी, क्योंकि अगर कोई भी जो नाउन है, जब नाउन है उसी को जब हम क्लियर करते हैं तो फिर हम डिग्रीज़ का सहारा लेते हैं कि ये पंखा अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। तो अब आपके पास 3 एक्सप्रेशंस होती हैं जिसको आप डिग्रीज कहते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ओके। इसी तरीके से अब जिस तरह एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, इस तरह एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अली इज़ ए सीरियस पर्सन, तो सीरियस इज़ एडजेक्टिव। लेकिन मैं कहूँ कि अगर अली वर्क सीरियसली, अली काम तो करता है, कैसे करता है? सीरियसली करता है। अब देखिए कि ये जो सीरियसली है ना, ये वर्क के बारे में बता रहा है, ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है। अली इज़ ए सीरियस वर्कर, ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। यहाँ पे सीरियस वर्कर, ये सीरियस जो है ना वर्कर के बारे में बता रहे हैं, वर्कर नाउन है। ये सीरियस यहाँ पे एडजेक्टिव है और सीरियसली एडवर्ब है। ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है सीरियस, सीरियसली पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है। डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव की नहीं होती है, एडवर्ब की भी होती है। बस ये आप बताना चाहते हैं कि अली अच्छा है, अली इज़ ए गुड पर्सन, अली अच्छा पढ़ाता है। अब देखिए जब मैं कह रहा अली अच्छा पढ़ाता है तो हमारा मतलब अली नहीं, अली का काम है, तो हम कहेंगे अली टीचर्स वेल, गुड। सो
अली वर्क्स मोर सीरियसली देन आई डू, अली मुझसे ज़्यादा सीरियस काम करता है। अब देखिए सीरियस पॉजिटिव डिग्री थी ना, उसकी कंपैरेटिव आ गई मोर सीरियसली, दैट इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। अली मुझसे ज़्यादा सीरियस काम करता है। और अगर इसका सीरियस का अगर आप एडजेक्टिव बनाओगे तो अली इज़ अ मोर सीरियस वर्कर देन ही इज़, अली मुझसे इससे ज़्यादा सीरियस है, इज़ अ मोर सीरियस, ये एडजेक्टिव है। और मोर सीरियसली एडवर्ब है। देखिए आपके सामने दोनों की डिग्रीज हैं, हाउ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ एडवर्ब वर्क। ओके, अली वर्क्स द मोस्ट सीरियसली इन द क्लास, अली इस क्लास में सबसे ज़्यादा सीरियसली काम करता है, द मोस्ट सीरियसली इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, ओके, द मोस्ट सीरियसली, अली वर्क्स द मोस्ट सीरियसली इन द क्लास, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। ओके, अली इज द मोस्ट सीरियस वर्कर, द मोस्ट सीरियस वर्कर, ये जो है अपना सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक बात ध्यान में रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, इनके आगे हमेशा द रखाया जाता है। द मोस्ट सीरियसली, द मोस्ट सीरियस, ओके, इन बोथ सेंसेस वी पुट एडजेक्टिव हेयर, we put the definite article the in their end। okay, तो अब आते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ओके, जो वर्ब्स हैं उसकी काइंड्स क्या होती हैं। तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज देयर, दैट इज एडवर्ब ऑफ ए टाइम। ये वो एडवर्ब है जो आपको टाइम के बारे में बताता है। इसके बारे में जो भी आप जब सेंटेंस में टाइम को रेफर करते हैं, वी यूज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यस्टरडे, daily, few minutes ago, afterwards, eventually, lately, now, recently, soon, then. These are adverb of time। ये सेंटेंस में वक्त का तयन करते हैं। We met him yesterday, हम कल मिले थे। Yesterday is adverb of a time। Do you see him daily? Daily जो है adverb of time। He came here few minutes ago, चंद मिनट पहले वो यहाँ पे आया था। This is again adverb of time। okay, so he came here few minutes ago। अब adverb of place वो हैं जब हम सेंटेंस में इनकी प्लेस का तयन करते हैं, तो ये जगह बताते हैं कि here, there, outside, away, everywhere, somewhere, nowhere, these are called adverb of place। okay, please come here, ये जो here है, this is adverb of place। he stood there long time, he stood there long time। okay, why are you standing outside? Why are you studying outside? Outside is adverb of place। come here, go there, outside, inside, somewhere, everywhere, nowhere। okay, ये जो है place का तयन करते हैं, we call them adverb of place। then we have adverb of number। adverb of number से मुराद ये कि ये सेंटेंस के अंदर तादाद को शो करते हैं। जो वर्ब है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर, जो काम हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी जो है तादाद क्या है। फॉर इंस्टेंस वी से ट्वाइस, दो मरतबा, अगेन या कंटिन्यूअली। अच्छा, एक होता है कंटिन्यूअली, एक होता है कंटिन्यूसली। अच्छा, कंटिन्यूअल तब हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मुसलसल हो रही हो, लेकिन उसके अंदर अगर गैप होते हैं तो फिर हम कंटिन्यूअल यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस हम तब यूज़ करते हैं जब वो चीज़ चलना शुरू करे फिर बिल्कुल ना रुके। पंखे का जब आप बटन चलाते हैं तो वो पंखा कंटिन्यूसली काम करता है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ फिर रुकता हूँ, फिर बोलता हूँ फिर रुकता हूँ, तो ये जो बोलना है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये कंटिन्यूअल होता है। इस तरह के एक्शंस में हमें कंटिन्यूअल लगाना चाहिए। और जो ना तो हम जो लिखते हैं या बोलते हैं ये कंटिन्यूअल होते हैं, और अगर कोई चीज़ मुझसे गाड़ी चलती है तो वो कंटिन्यूअस चलती है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअली। फ्रीक्वेंटली, बार बार। अकेयनली मीन्स कभी कभार, तो वो रोज़ नहीं आते, कभी कभार। अकेयनली ही विजिट्स अस, ही विजिट्स अस फ्रीक्वेंटली, वो हमें अक्सर तौर पे बार बार विजिट करते हैं। ऑफन और अक्सर तौर पे।
आप यूज़ कर सकते हैं ऑफन या फ्रीक्वेंटली, वंस एक मरतबा, पीरियडिकली वक्त के साथ, रिपीटेडली बार बार, समटाइम्स कभी कभार। एक समटाइम होता है वो नहीं, ये समटाइम्स। समटाइम जो हम यूज़ करते हैं उसका हमारा मतलब होता है प्लीज़ गिव मी सम टाइम। उसमें सम को हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, टाइम को एज ए नाउन यूज़ करते हैं। लेकिन जो समटाइम्स है प्लीज़ ओके, ये जो समटाइम्स है, ये समटाइम्स जब हम यूज़ करें, दिस समटाइम्स यहाँ पे जो है ना हम यूज़ करें एज ए कभी कभार। ओके, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कभी कभार। ओके, समटाइम्स। एवर, हार्डली एवर, नेवर, रेयरली, स्कैर्सली एवर, स्कैर्सली एवर, सेल्डम। तो हार्डली एवर कभी कभार, या स्कैर्सली एवर कभी कभार, इक्का दुक्का जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, सेल्डम भी होता है, इक्का दुक्का कभी कभार आ जाते हैं। आई सेल्डम गो देयर, मैं कभी कभार उधर जाता हूँ। दिस सेल्डम इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बता रहा है कि आपके आने जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने मरतबा आते जाते फिर। आई हैव गिवन यू द मनी ट्वाइस, मैं 2 मरतबा आपको पैसे दे चुका हूँ। ट्वाइस, दिस ट्वाइस शोज दैट ओके। सो द policeman called him again, पुलिस वालों ने इसको दोबारा बुला दिया, called him again. This again is adverb, this again adverb of frequency. So again and twice and seldom and ever and hardly ever and sometimes and repeatedly, periodically, once, often, occasionally, frequently, continually, again and twice. These are adverb of frequency. ये आप सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं जब आप ये बता रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो कितनी मरतबा हो रहा है, कितनी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है। कभी कभार होता है, रोज़ होता है, अचानक होता है, सडनली, इस तरह की चीज़ें वी कैन यूज़ दिस। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर पे। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको ये बताता है जो काम हो रहा है उसका जो है ना वो मैनर क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या, कैसे हो रहा है। सो वी कॉल इट एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, देन वी हैव दिस एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंदर जो है ना वो जो एक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। द वे दिस एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, दे केम लेट, वो आए तो सही, कैसे आए, देर से आए। शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो काम तो कर रही है, कैसे कर रही है, हार्ड। ये पढ़ाता तो है, कैसे पढ़ाता है, ही टीचेस वेल। वो बोलता तो है, कैसे बोलता है, ही स्पीक्स पोलाइटली। ठीक है, तो जो मैनर होते हैं, जिस तरीके से कोई काम होता है, वी कॉल इट एडवर्ब ऑफ मैनर। He works hard. Hard is adverb of manner. She walks slow. Slow is adverb of manner. How the action is going to take place. Okay. So she works hard. So she works hard. Well, now look at this adverb of negation and अच्छा, मज़े वाली बात है, आप हैरान होंगे, अक्सर सेंटेंस में जब से हम पूछते हैं कि आई डोंट प्ले क्रिकेट या आई एम नॉट कमिंग, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस नॉट पे परेशान हो जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि ये नॉट क्या है। अगर हम इसको एनालाइज करें कि आई एम नॉट कमिंग, तो इसमें आई प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग वर्ब है, नॉट क्या है। तो अंडरस्टैंड दिस नॉट इज एडवर्ब बेसिकली। आई एम नॉट कमिंग मीन्स दिस एडवर्ब, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो दिस आर एडवर्ब ऑफ नेगेशंस एंड अफर्मेशन। नेगेट का मतलब होता है इनकार करना, और अफर्मेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो का इकरार करना। ओके, सो द वर्ड्स विच शो अफर्मेशन एंड नेगेशंस ऑफ एन एक्शन, कोई काम होता है या कोई काम नहीं होता है। जो होता है वो अफर्मेशन है, जो नहीं होता वो नेगेशन है।
For example, like this. Okay, so negation. I don't know the man. I don't know the man. मैं उस बंदे को नहीं जानता. This not is a adverb. This is adverb of negation. ये adverb है, not adverb है. Please note it. You will certainly achieve your goal. आप यकीनन अपना मकसद हासिल करेंगे. Certainly, this is adverb. और ये adverb of affirmation है. यकीनन. Surely you are mistaken. यकीन के साथ आप गलत हो. Surely, certainly, not. These are adverb of affirmations and negation. Negation में इनकार होता है, affirmation में इकरार होता है, आप उस चीज़ को जो ना वो. फिर adverb of degrees आती हैं. इसमें हम adverb की degrees को डिस्कस करते हैं, जिस तरह ऊपर मैंने कहा quite and fully, या to, absolutely, almost, barely, completely, enough, entirely, fairly, far, wholly, just, much, nearly, only, rather, really, scarcely. They are used as a adverb of degrees. अब देखें कि I am quite happy. अच्छा, आप खुश तो हैं, लेकिन कितने हैं? I am quite happy. We call it I am quite happy. या he is too careless to pass the examination. He is too careless to pass the examination. वो बहुत ज़्यादा careless है एग्ज़ाम पास करने के सिलसिले में. He is too careless to pass the exam. Okay. अब वो careless तो है, लेकिन कितना है? Too careless. बहुत ज़्यादा जो है ना लापरवाह है इम्तिहान पास करने के हवाले से. I am fully satisfied. ये fully बता रहा है कि आपकी जो satisfaction है उसकी क्या नोयत है. तो दिस कॉल्ड adverb of degrees. यहाँ पे as an adverb has a comparative and superlative degrees. Therefore the rules for the formations of degrees of adjectives are applicable in case of adverb. The most of the adverb जो हमने वहाँ पे adjectives की मैंने आपको जो रूल पढ़ाए थे डिग्रीज बनाने के लिए, वही चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं. ज़्यादा तौर पे जो डिग्रीज आर एप्लीकेबल, ज़्यादा तौर पे क्या होते हैं कि ई आर और ई एस टी लगाकर जो है ना हम इनकी कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं. He came late, he came later, he came late last. Late, later, last. Near, nearer, nearest. Soon, sooner. फिर इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती. Angry, angrily, more angrily, most angrily. Bravely, more bravely, most bravely. Cunningly, more cunningly, most cunningly. Okay. अब cunningly मुराद को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कि he sells things cunningly, कि ये शातराना अंदाज से चीज़ें बेचता है. खनिंगली, शातरा. खनिंग एडजेक्टिव है, खनिंगनेस नाउन है, खनिंगली एडवर्ब है. ही सेल्स थिंग्स खनिंगली, वो शातराना तरीके से चीज़ें बेचता है. बट जाहिद सेल्स मोर कनिंगली देन ही डज. ओके, अब जो है हम कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं. मोर कनिंगली. बट डेविड सेल्स द मोस्ट कनिंगली, लेकिन डेविड तो बहुत ही ज़्यादा शातराना अंदाज में बेचता है. दैट इज़ हाउ यू कैन जस्ट यूज़ डिग्रीज. ओके. अली स्पीक्स एंग्रीली, अली गुस्से से बात करता है. बट जाहिद स्पीक्स मोर एंग्रीली, जाहिद उससे ज़्यादा गुस्से से बात करता है. बट डेविड स्पीक्स द मोस्ट एंग्रीली, डेविड तो सबसे ज़्यादा गुस्से में बात करता है. दैट इज़ हाउ. देखें, अब यहाँ पे गुस्से से बात करना वर्ब है, उसके बारे में जो मालूमात दे रहे हैं दे आर एडवर्ब. सो दीज आर डिग्रीज ऑफ एडवर्ब. ओके. सर्टेन एडवर्ब्स मेक देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इरेगुलरली. कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो अपनी डिग्रीज इरेगुलर तरीके से बनाते हैं, जिस तरह एडजेक्टिव बनाते हैं. कुछ आपने देखा ना एडजेक्टिव उनकी डिग्रीज इरेगुलर थी. कैसे? जिस तरह गुड, बेटर, बेस्ट था, इसी तरीके से इनके भी फार, फार्दर, फारदेस्ट, little, less, least, much more, most, fourth, further, furthest, late, later, last, near, nearer, nearest, well, better, best. Okay. So इनको हम जो है ना एडवर्ब ऑफ डिग्रीज कहते हैं. उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब ऑफ जो है ना इंटेरोगेटिव एडवर्ब. देखें ना, हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, विच, हु, व्हाट. फिर हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़े, जिस तरह हमने इन्हीं को यूज़ किया कि विच बुक डू यू वांट टू परचेज, तो विच अब एडजेक्टिव बन गया. और यहाँ हमने कहा कि व्हाट बुक डू यू लाइक, व्हाट मूवी डू यू लाइक, तो व्हाट एडजेक्टिव बन गया. इसी तरीके से
जो है अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ओके, ये वो वर्ड हैं जो सवाल पूछने के काम आते हैं। इनका जवाब जब भी आएगा तो वो आपके पास जो है ना वो एडवर्ब में आएगा। मिसाल के तौर पे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अब इसका जब भी वेयर का आप जब भी जवाब देंगे तो प्लेस में देंगे, वेयर डू यू लिव। ओके, या व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डिड यू कम। ओके, अब व्हेन का जब भी आप जवाब देंगे तो आप टाइम में देंगे। या वाई जो है ना, वाई आर यू क्राइंग, वाई का जब भी आप जवाब देंगे आप एडवर्ब ऑफ रीज़न में देंगे। वेयर का जवाब एडवर्ब ऑफ प्लेस में, और व्हेन का जवाब एडवर्ब ऑफ टाइम में, वाई का जवाब आएगा एडवर्ब ऑफ रीज़न में, और हाउ का जवाब आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर में। हाउ डू यू प्ले, अगर यहाँ पे हम कहें कि हाउ डू यू प्ले, इसका जब भी जवाब आएगा तो हाउ का जब जवाब आएगा तो वो किस में आएगा, दैट विल बी जस्ट इन एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये वेयर जो है ये है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, लेकिन वेयर का जब जवाब देंगे तो आपको प्लेस में बताना पड़ेगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा, इसका हमेशा जवाब आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, आई एम यूजिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका जब जवाब आएगा दैट विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम। Then come to adverb of why are you crying, इसका जब भी जवाब आएगा that will be adverb of, we call it adverb of reason. Okay, why, adverb of reason, इसमें आपको adverb of reason में लिखना पड़ेगा, उसका बताना पड़ेगा। उसके बाद जब आप आते हैं how do you play, इसका जब भी आप जवाब देंगे then you will come with your answers will come in adverb of manner. How do you play, आप कैसे खेलेंगे, this will be adverb of manner. मैनर आपको बताएगा कि काम कैसे हो रहा है। तो देखिए adverb of time, ये हैं सब इंटेरोगेटिव एडवर्ब, लेकिन जब इनके आप जवाब देंगे तो आपको adverb of place, time, reason और manner में जाकर इनके जवाब देने होंगे। रिलेटिव एडवर्ब जो है ना बताता है चीज़ों को रिलेट करता है ना, जैसे नाम व्हेन द एडवर्ब रिलेट्स और रेफर्स बैक टू इट्स एंटीसीडेंट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ओके, आगे जिसका जिक्र आ रहा है जब उसको जो है ना रेफर करता है देन इट बिकम्स रिलेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जांपल दिस इज़, जब आप कहते हैं कि दिस इज़ द हाउस वेयर इकबाल लिव्स, ये वो घर है जहाँ पे इकबाल रहता था। दिस इज़ द हाउस वेयर, ये वेयर किसको क्वालिफाई कर रहा है, दिस इज़ द हाउस, इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम अगेंस्ट, यही वो सबब है। देखिए मैंने कहा ना वाई का जवाब रीज़न में आता है, यही वो सबब है कि मैं तुम्हारे मुखालिफ हूँ। आई नो द टाइम व्हेन ही अराइव्स, मुझे वो टाइम का पता है जब वो आता है। आई नो द टाइम व्हेन ही अराइव्स। ओके, सो इस सेंस के अंदर यू कीप यूजिंग दीज एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। ओके, उसके बाद एडवर्ब ऑफ काज है। एडवर्ब ऑफ काज आपको ये बताता है कि जो चीज़ हो रही है उसका काज क्या है, उसका सबब क्या है। जिस तरीके से ये सेंटेंस है कि हम यूज़ कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ही वेंट देयर टू अटेंड मीटिंग, एडवर्ब ऑफ काज, ये सबब बताता है क्यों गया था। मैंने आपको बताया ना वाई, एडवर्ब ऑफ रीज़न और काज। He went there. Why he went to Karachi? He went there to attend the meeting. Adverb of cause or reason. He went in to attend the guest. Went in. क्यों अंदर गया? मेहमान को अटेंड करने के लिए. Attend the guest. Adverb of cause. He rang bell to call the peon. He rang bell. उसने बेल क्यों बजाई? पियान को बुलाने के लिए. Adverb of this cause. अब जो अक्सर जो फॉर्मेशंस ऑफ एडवर्ब्स कैसे होती है
कि जनरली जो फॉर्मेशन होती है उसमें हम ये कहते हैं कि ऑफ एन एडवर्ब ly इज एडेड टू एन एडजेक्टिव, फॉर इंस्टेंस फाइनल, फाइनली, हैप्पी, हैप्पीली, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली। लेकिन वर्ड्स यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, डेली, मीकली, मंथली, काइंडली, ठीक है ना, ये वो वर्ड हैं जिसको आप जो है एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इनको एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ही कम्स डेली, ओके, तो ये डेली किसके जो है ना वो क्या है, एडवर्ब है। ही कम्स आता है, कैसे आता है, डेली, तो डेली आने को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज़ एडवर्ब। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिस इज द डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, अब डेली जो है वो फिर एडजेक्टिव हो जाएगी जो न्यूज़पेपर को क्वालिफाई करे, जो कि नाउन है। तो इस तरीके से मंथली फीस, मंथली फीस, अब ये मंथली फीस जब आप यूज़ करेंगे, फीस नाउन है, मंथली उसके आगे आ रहा है, वी यूज़ दिस एज ए मंथली, ओके, सो दिस वी यूज़ मंथली एज ए एडजेक्टिव, we use monthly as adjective, okay, monthly fees। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि he pays fees monthly, he pays fees monthly, अब ये मंथली फीस पे करता है तो अब ये मंथली एडवर्ब बन गया, पे को क्वालिफाई करा, he pays fees monthly, अब मंथली एडवर्ब है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि he pays his monthly fees, तो मंथली जब फीस के आगे आएगी तो फीस नाउन है, फिर मंथली एडजेक्टिव बन जाएगा। द वर्ड यूज एडजेक्टिव ओनली, फ्रेंडली, लाइकली, लोनली, ये वो वर्ड हैं आप इनको सिर्फ जो है ना वो एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज देम एज ए एडवर्ब, ओके, दे आर यूज्ड एडजेक्टिव ओनली, यूज्ड एडजेक्टिव ओनली, फ्रेंडली, लाइकली, एडवर्ब, ओके। अब एडवर्ब हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स एंड कंटेक्स्ट देन एडजेक्टिव, ओके, कोल्डली और कूलली, ओके। अब कोल्डली जो है ना वो जो होता है, या वार्मली, दिस रेफर्स टू द फीलिंग एंड अ मैनर थिंग्स ट्रीटेड, ओके। अब देखें ना, जब आप कहते हैं ना कि उसने मुझे कोल्डली, यहाँ पे कोल्ड का ताल्लुक जो है ना वो एडजेक्टिव के साथ नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि ही रिस्पॉन्डेड कोल्डली, उसका मतलब ये है कि उसने जो मुझे जवाब दिया वो कोई इतना मुस्बत नहीं था। हम गए उनके पास मदद के लिए, एंड ही रिस्पॉन्डेड कोल्डली, कोल्डली, तो यहाँ से मुराद ठंडापन नहीं है, यहाँ से मुराद ये है कि उसका जो रिस्पांस था वो कोई मुस्बत नहीं था। और अगर हम कहें कि ही रिस्पॉन्स कूलली, दैट इज़ मीन समथिंग कूल, और कूली से वो जो है वो पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं, देन वी यूज़ दिस टर्म कूल। कूल जो कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, सही लगती है, वी यूज़ टर्म कूल और कूली, देन वी यूज़ दिस टर्म, ओके। एंड देन कम्स टर्म वार्मली, वार्म मीन्स समथिंग भी अगर जो है ना वो, यहाँ से वार्म की मुराद जो है ना वो तपश या गरमाइश नहीं है, ठीक है ना, जो आमतौर पे हम जो है ना वो जो एडजेक्टिव हमें कहता है। अगर मैं कहूँ कि इट इज़ अ वार्म डे टुडे, आज का दिन बड़ा वार्म है, बड़ा गर्म है, तो दैट वार्म इज एडजेक्टिव, हाँ, वो उसके टेम्परेचर को जाहिर कर रहा है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि ही ग्रीटेड अस वार्मली, ग्रीटेड अस वार्मली, उसने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया, वार्मली, वेलकम्ड वार्मली, तो ये जो वार्म है, दे शो टू द फीलिंग्स rather than this type of the way the adjectives deal, okay। अब एक बात ज़हन में रखें कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए, बताए कि काम कैसे होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, जगह आए, और एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, तो इनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, ओके। अब ये इसका तरतीब का जो है ना अरेंजमेंट होनी चाहिए कि पहले आप मैनर रखें, फिर आप प्लेस रखें, फिर आप टाइम रखें। He did well at school in the annual sport this year. He did well. अब well जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो बता रहे काम कैसे हुआ है, अच्छा हुआ है। कहाँ पे अच्छा हुआ, स्कूल पे हुआ। यहाँ पे स्कूल एडजेक्टिव जो है ना नाउन नहीं है इस सेंटेंस। अब एट स्कूल ये एडवर्ब का काम कर रहा है। एट स्कूल इन द एनुअल स्पोर्ट दिस ईयर, ईयर जो है ना वो टाइम है, तो मैनर, प्लेस, टाइम। ही प्लेड वेल, वो अच्छा खेला, कहाँ पे,
in Karachi place last year. He played well in Karachi last year. He played well in Karachi last year. Well, adverb of manner. In Karachi, adverb of place. Last year, adverb of time. So, अगर ये तीनों एडवर्ब आपके पास सेंटेंसेस में मौजूद हों तो आपको ये तरतीब रखनी होगी. अगर इसमें मैनर नहीं है तो फिर आप प्लेस को आगे रखें, उसके बाद टाइम को. अगर आपके पास प्लेस नहीं है तो पहले आप मैनर रखें, बाद में टाइम को. अगर आपके पास सिर्फ मैनर और प्लेस हैं तो फिर आप पहले मैनर को रखेंगे, फिर प्लेस को रखेंगे. टाइम नहीं है तो छोड़ दें. लेकिन ये जो इस तरतीब है ये आपको जहन में रखनी है कि हाउ टू पुट दीज सेंटेंस दीज एडवर्ब्स इनटू प्रॉपर. ओके, so when a sentence has a verb which indicates movements like reach, walk, arrive, the adverb of place acts as a kind of object to the verb and comes immediately after it. अगर कोई ऐसा सेंटेंसेस है जिसमें इस तरह के वर्ब जो मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो फ़ौरन उसके जो है ना वो इज़ ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, फिर वो फ़ौरन जो ना आ जाता है. द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन. अब देखें ये जो एट द स्टेशन है ना ये इसका बतौर जस्ट एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है वर्ब का. तो फिर ये सेंटेंस में जो है ना वो डेली आ जाता है. ओके, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन लेट. ओके, तो ये यहाँ पे प्लेस है, इसमें हम प्लेस को आगे रख के फिर टाइम को जो है ना वो रेफ़र कर रहे हैं. तो दैट इज़ द वे यू कैन. Sometimes the adverbs of time are placed in the beginning of the sentence for the purpose of emphasis or clarity. कभी कभार आप टाइम को आगे ले जाते हैं ना, एडवर्ब ऑफ टाइम. इवन जब आपने ये बताना हो कि कल ये चीज़ हुई है, यस्टरडे, ओके, तो आप क्या होता है कि आप उस टाइम को रेफ़र करना चाहते हैं, आप सेंटेंस में उस बात को जो ना बताना चाहते हैं, उस टाइम को रेफ़र करना चाहते हैं. 2019 प्रूव्ड, अब 2019 या इन 2019 फिर कामा देकर आप आगे बात शुरू कर देते हैं, या इन लास्ट मंथ फिर आप कामा देकर बात शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पे इन द लास्ट मंथ, इन 2020, ये जो सेंटेंस की शुरुआत में आप कब ले आते हैं जब आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाह रहे होते हैं, उस पर जोर भरना चाह रहे होते हैं. वी यूज़ दिस टाइप ऑफ वे टेक्निक को वी कॉल लास्ट सैटरडे. ओके, वी हैव अ जॉली गुड टाइम पिकनिक इन द river bank on the other side of the forest last Saturday. Okay, last Saturday को आगे रखकर आपने उस पर एम्फेसाइज दिया है. अच्छा, if there are more adverbs of a category, 2 or more adverbs category in a sentence, the more exact expression usually precedes the general ones. अगर एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्ब है फिर हम देखेंगे कि उसमें एग्जैक्ट कौन सी चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको आप आगे रखें. ही केम हेयर एट 5 o'clock in the evening of Friday last. अब देखें यहाँ पे टाइम को हमने पहले रखा है, सब टाइम है, इवनिंग भी टाइम है, इवनिंग और 5 o'clock भी टाइम है, फिर फ्राइडे भी टाइम है. अब एक ही कैटेगरी की 3 चीज़ें हैं लेकिन फिर उसमें हमने तरतीब क्या रखी, जो ज़्यादा जो है ना वो एग्जैक्ट है उससे हम आस्ता आस्ता की तरफ गए. 5 o'clock in the evening Friday last. So this is how you can just put अगर एक ही कैटेगरी की ज़्यादा जो है सेंटेंस के अंदर then you can use. Sometimes the adverb of a place is used in the beginning of a sentence for the sake of emphasis. कभी कभार जो है ना हम जिस तरह ऊपर एडवर्ब ऑफ टाइम को आगे ले गए थे तो कभी कभार हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी आगे ले जाते हैं. आउटसाइड द होटल द कार स्टॉप सडनली, या आउटसाइड द होटल दिस एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो ये कभी कभार हम चेंजेस करते हैं फॉर द सेक ऑफ एडवर्ब इन ऑर्डर टू गिव इट एम्फेसिस. ओके, सो वेल दिस वाज द इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ सेमेंटिक्स. हमने एडवर्ब को पढ़ा, एडवर्ब की मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया. And in the language system I mentioned today, this adverb has a very wonderful jurisdiction. It extends its help to an adjective, to a verb, to an adverb, to a preposition, to conjunction. And there is a type, is adverb of manner, and adverb of place, adverb of time, and negation, and affirmations, and degrees, and relative. So these all adverbs, how we use in language structures and what is their role, that's very simple. अब देखिए असल करना क्या होता है, अक्सर जो आप इन ग्रामर को बैठकर रटा ना लगाएं, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है.
मैंने आपसे कंसेप्ट शेयर किए। जब कभी भी आपको कोई एडवर्ब के मामले में कोई इस तरह की कन्फ्यूजन होती है, आप उस स्पेसिफिक कंसेप्ट को वहाँ पे देख लें कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन जब लैंग्वेज यूज़ की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम उसको इस ग्रामर रूल्स में नहीं फंसाते। ये सिर्फ कंसेप्ट हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं और वो हम उनको सुनते हैं। जो आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी लैंग्वेज बिल्टअप होती जाती है, तो उसमें जब कभी भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, आप ऊपर जाकर इस कंसेप्ट को जो है वो देख लें। अब ये एक मरतबा डिस्कस हो जाते हैं, उसके बाद कीप हेल्पिंग यू इन अ डिफरेंट सिचुएशंस, वो आपको मुख्तलिफ सिचुएशन में आपकी मदद करते रहते हैं। सो दिस इज़ वेयर इज़ द एडवर्ब स्टेंस। आई थिंक दैट्स इनफ टाइम फॉर सिमेंटिक्स। नाउ लेट्स गो फॉर सिंटैक्स। अब सिंटैक्स पे चलेंगे एंड आई विल शो यू एन इंटरेस्टिंग वीडियो। अब हमने अपने वोकैब को बिल्डअप करने के लिए और लिसनिंग को बढ़ाने के लिए प्लीज़ कम हियर फॉर वीडियोज़। Ich wünsche mir, dass nach der Demo viele Leute darauf achten, dass sie nicht mehr so viel aufs Handy gucken. Die Eltern lassen das Handy aus. Okay, so this would be your first response. Okay, this was the listening. What did you listen, and what could you comprehend out of this session? This listening. I will not help you to explain it, and I will rather take you towards this reading material. You may read it, and then we would listen this video clip, please. You have 1 minute to read this. That's very interesting. Okay, I hope that you have covered reading. Let's explain this. Children protesting, demonstrating against excessive use of cell phone by their parents. इसमें देखिए जो हेडिंग दी गई है वो कैसे दी गई है। हेडिंग को सेंट्रलाइज किया गया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसके पहला लेटर कैपिटल किया गया। चिल्ड्रेन का सी कैपिटल है, प्रोटेस्टिंग का पी कैपिटल है, अगेंस्ट का और एक्सेसिव का। और इसमें जो छोटे वर्ड्स आते हैं जिस तरह मॉडिफायर्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं अ, एंड, द, आव एसेट्रा, बाय, इनको हम जो है ना कैपिटल नहीं करते। यहाँ पे देखिए आव को कैपिटल नहीं किया, बाय को कैपिटल नहीं किया, बाकी जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं उनका पहला लेटर कैपिटल किया गया। ये सेंटर हेडिंग देने का रूल होता है, ये तरीक़ेकार होता है। या हम ये करते हैं कि जो सेंट्रल हेडिंग आती है उसके तमाम लेटर्स को कैपिटल कर दिया जाता है। वो जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ये भी मेथड यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से आपने अपने साइंस वगैरह के बुक्स को देखें, अगर चैप्टर की जो है ना वो उन्वान होता है हीट, तो यहाँ पे जो है ना वो चैप्टर लिखा जाता है और हीट पूरा कैपिटल में लिखा जाता है। फिर जब सब हेडिंग दी जाती है, जो यहाँ पे सब हेडिंग दी जाती है, उसमें फिर पहले लेटर को कैपिटल किया जाता है, बाकी स्मॉल रहने दिए जाते हैं।
तो दोनों तरीक़ेकार जो है ना वो यूज़ किए जा सकते हैं लिखने में, लेकिन मोस्ट ऑफन जो है ना हम इस मेथड को यूज़ करें जो अभी इस टाइम आपके सामने मौजूद है। सो चिल्ड्रेन प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट का मतलब है एहतजाज करना, डेमोन्स्ट्रेटिंग एहतजाज करना, अगेंस्ट, व्हाट आर दे प्रोटेस्टिंग, किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो है ना दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। अब देखिए प्रोटेस्ट के साथ अब हमारा जो एडवर्ब के बाद दूसरा जो चैप्टर है वो प्रीपोजिशन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और प्रीपोजिशंस पे भी हम बिल्कुल जो है ना वो खुलकर काम करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होगा जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये दो प्रीपोजिशंस होते हैं, एक तो लॉजिकल प्रीपोजिशंस होते हैं जो किस लॉजिक के तहत यूज़ करते हैं, और एक जो फिक्स्ड डेफिनेट प्रीपोजिशंस होते हैं। फिक्स वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो किसी मखसूस वर्ड के बाद आते हैं, वी कॉल देम ओके। अब प्रोटेस्ट के बाद जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, वाई यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। एक्सेसिव यूज़, एक्सेसिव यूज़, अब देखिए यूज़ नाउन है, एक्सेसिव एडजेक्टिव है। जो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, किसके खिलाफ, एक्सेसिव यूज़। अच्छा देखिए एक होता है यूज़ जो कि वर्ब है, एक होता है यूज़ जो कि नाउन है। जब ये नाउन होगा तो यूज़ होगा, जब वर्ब होगा तो यूज़ होगा, ज और स, यूज़ नाउन में। अब यहाँ पे ना ये अगर मेरे इस्तेमाल में है तो ये यूज़ होगा, आई एम यूजिंग इट, तो अब ये वर्ब है तो यूज़। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेलफोन, सेलफोन का कसरत से इस्तेमाल के ख़िलाफ़ बच्चे एहतजाज करें बाय दियर पेरेंट्स, उनके वालिदैन का फ़ोन को कसरत से इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ बच्चे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोटेस्टिंग। हु इज़ प्रोटेस्टिंग, yes children are protesting. What are they protesting against? They are protesting against excessive use of cell phone. Who is using cell phone excessively? अब देखिए excessive यहाँ पे adjective है ना, अभी इसी को मैं adverb बना रहा हूँ। Who is using cell phone excessively? Excessively कौन ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है? Parents are using phone excessively. पेरेंट्स ज़्यादा फ़ोन, अब देखिए एक्सेसिवली, एक्सेसिवली एडवर्ब है, किसके बारे में बता रहा है, फ़ोन के इस्तेमाल तो हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ़ोन का इस्तेमाल एक्सेसिवली हो रहा है, इज एक्सेसिवली। सो इन दिस वीडियो क्लिप वी वॉच स्मॉल चिल्ड्रेन आर प्रोटेस्टिंग, इसमें हम देख रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं ना वो एहतजाज कर रहे हैं, एंड लॉन्चिंग अ कैंपेन, और एक वो कैंपेन जो है ना वो लॉन्च कर रहे हैं, एक मुहिम, कैंपेन का मतलब मुहिम होता है, वो एक मुहिम जो है ना वो चला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, चला रहे हैं, किसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, अगेंस्ट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फोन। यूज़ आव, ये जो ओ एफ है ना इसको ऑफ ना पढ़ा करें, आव, अगेंस्ट एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फोन बाय देयर पेरेंट्स, उनके वालिदैन का जो एक्सेसिव इस्तेमाल है उसी के खिलाफ। दे आर होल्डिंग प्ले कार्ड्स, दे आर होल्डिंग प्ले कार्ड्स, प्ले कार्ड्स होता है जो हाथ में उठाए होते हैं, जब लोग एहतजाज करते हैं तो वो प्ले कार्ड्स जो हाथों में होते हैं। दे आर होल्डिंग, एक बैनर होते हैं, बैनर वो जो लंबे होते हैं, और प्ले कार्ड्स जो होते हैं वो चौरस छोटे होते हैं और वो लोगों ने हाथों में उठाए होते हैं। दे आर, और आप देखेंगे दोबारा वीडियो चलेगी, यू कैन फाइंड द प्ले कार्ड्स, ओके। दे आर होल्डिंग प्ले कार्ड्स, उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए, विच रीड। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब आप उर्दू सिंधी में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं जिस पे लिखा है, और अंग्रेज़ी में जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि दे हैव अ प्ले कार्ड्स विच रीड। अब इंग्लिश में हम टर्म ये यूज़ करेंगे विच रीड के जो जिस पे पढ़ा जा सकता है, और सिंधी उर्दू में जब हम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें जब, या मैं क्या हम कहेंगे कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें लिखा है, ठीक है, तो आप अंग्रेज़ी में उर्दू में यही कहेंगे कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें लिखा है, लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि देयर इज़ अ वर्स ऑफ द होली कुरान व्हिच रीड्स, देयर इज़ अ वर्स ऑफ द होली कुरान व्हिच रीड्स, तो व्हिच रीड्स, ठीक है, चूँकि वहाँ पे एक वर्स है तो मैं कह रहा हूँ रीड्स, यहाँ पे ज़्यादा जो है ना प्ले कार्ड्स हैं तो मैं कह रहा हूँ व्हिच रीड्स, दे आर होल्डिंग प्ले कार्ड्स व्हिच रीड्स। अब देखिए जो प्ले कार्ड्स के अंदर मवाद है वो उनके डायरेक्ट जो वर्ड हम कोड कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको इन्वर्टेड कॉमा में रख रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमा को हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई डायरेक्ट कोटेशंस हम उठाते हैं किसी किताब की, किसी के बंदे के कहे हुए अल्फाज एग्जैक्ट वही चीज़ें हम लिख रहे होते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। अब इसमें एक बात जहन में रखिएगा, जो ब्रिटिश अंग्रेज़ी वाले हैं वो इन्वर्टेड कॉमा को सिंगल यूज़ करते हैं, और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें
डबल जो है यूज़ होती है। इस टाइम ये डबल यूज़ हुई पड़ी है, दिस इज डबल इन्वर्टेड कॉमा। ब्रिटिश सिंगल यूज़ करता है और अमेरिकन डबल यूज़ करता है। अगर आप में से कोई CSS ऐसे वगैरह या इस तरह के की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये चीज़ लाजमी है कि वो फिर एक ही पैटर्न यूज़ करे, या सिंगल का या डबल का। लेकिन चूंकि आप स्पेलिंग वगैरह ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं तो वहाँ पे हमें जो है सिंगल यूज़ करना चाहिए। अब ये जो ऑफिस है, ये ऑफिस बेसिकली अमेरिकन ऑफिस है, क्योंकि ये जो MS वर्ड का ऑफिस का आपको पता है, बिल गेट वगैरह ये सब जो है ना वो सिलिकॉन वैली जो है वो अमेरिकन है, तो इनकी जो लैंग्वेज है ना वो अमेरिकन इंग्लिश है। इससे मुराद ये कि जो ऑफिस की जो लैंग्वेज है वो अमेरिकन है, जो उसके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन उसके अंदर ब्रिटिश का भी ऑप्शन दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हो तो ये जो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ पड़ा है, यहाँ पे आप देखें कि ये लैंग्वेज का इस टाइम जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे जब भी कोई ऑफिस की फ़ाइल खुली होगी तो यहाँ पे आ सकता है। और अगर हम इसको यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप इसको, अब ये आपके पास आ गया कि इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये फाइल ब्रिटिश इंग्लिश के में सिलेक्ट हो सकता है। सो दिस इज़ वेयर डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। लुक एट एज नॉट एट स्मार्टफोन। वो क्या कह रहे हैं कि हमें देखो और स्मार्टफोन पे ना देखो। प्ले विद अस नॉट विद अ स्मार्टफोन। ओके, हमारे साथ खेलो ना कि स्मार्टफोन के साथ जानो। तो लाइक दिस यू कैन सिंपली यूज़ ये जो है ना वो दो उनके प्ले कार्ड्स हैं जिस पे लिखा हुआ है कि हमारे साथ खेलो, स्मार्टफोन के साथ ना खेलो, हमारी तरफ देखो, फ़ोन की तरफ ना देखो। दे आर चांटिंग स्लोगन। जब लोग नारे लगाते हैं ना, नारे लगाने के लिए वर्ड यूज होता है चांट स्लोगन। स्लोगन का मतलब है नारे। वो नारे लगा रहे हैं। नारे के लिए क्या लगा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉलन दे दिया। कॉलन हम लगाते हैं जिस चीज़ का भी हमने जिक्र किया है, उसको आगे जब हम एक्सप्लेन करने जाते हैं तो हम कॉलन की निशानी दे देते हैं। ये कॉलन आपके सामने मौजूद है कि दे आर चांटिंग स्लोगन। वो स्लोगन कर रहे हैं, दे नारे लगा रहे हैं। क्यों नारे लगा रहे हैं? वी वॉन्ट टू लिव विद यू, कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। ये उन बच्चों के अल्फाज हैं, उसको दोबारा इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया। और कॉलन का इस्तेमाल आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है ना, कॉलन को दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक वो चीज़ जिसका भी आपने जिक्र किया है और आगे चल के आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, और दूसरा जो हम लिस्टिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कि मेरे 4 प्रॉब्लम हैं, कॉलन देकर फ़लाँ 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 एंड फ़लाँ जो है ना, तो लिस्टिंग के पर्पज़ के लिए भी हम कॉलन को यूज़ करते हैं। और आइडियाज़ को जो है ना वो एक्सटेंड करने के लिए भी हम कॉलन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कॉलन आइडिया को एक्सटेंड कर रहा है। जो चीज़ अभी जिक्र हुई है, दे आर चांटिंग स्लोगन्स, वो नारे लगा रहे हैं कॉलन। अब नारों में क्या कहा जा रहा है? वी वांट टू लिव विद यू, कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो दे एक्सपेक्ट, और वो क्या उम्मीद करते हैं? दे एक्सपेक्ट अ होप आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, वो क्या उम्मीद करते हैं? कौन? बच्चे। अब देखिए ये प्रोनाउन आ गया, किसके बारे में आ रहा है? चिल्ड्रेन के बारे में आ रहा है। ऊपर हमने लिखा था कि कौन कर रहा है, जो है दे आर चांटिंग स्मॉल चिल्ड्रेन। शुरू में एक मरतबा हमने नाउन को जिक्र किया, जब दूसरी मरतबा आया तो बच्चों की जगह पर हमने प्रोनाउन क्या लगा दिया? दे। क्यों दे लगा रहे? क्योंकि नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। नाउन को बार बार रिपीट करोगे तो चिल्ड्रेन 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 चिल्ड्रेन, इट विल लुक ऑकवर्ड। वी डोंट यूज दिस चिल्ड्रेन, ओके, टाइम एंड अगेन। सो दे एक्सपेक्ट आर होप। एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद करना। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, वो ये उम्मीद करें कि इस एहतजाज के बाद। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है एहतजाज करना। ओके, एक डेमोन्स्ट्रेशन होती है जो चीज़ आप क्लास वगैरह में देते हैं, वो भी आप बताते हैं, दिखाते हैं कि मुझे ये चीज़ आती है, मुझे ये स्किल आती है, मुझे मैथ आती है, मुझे इंग्लिश आती है। दैट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, और ये डेमोन्स्ट्रेट का दूसरा है कि जब आप एहतजाज करते हैं, लोगों को अपना मसला, अपनी चीज़ें अयां करते हैं, दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें। जिस तरीके से आज के दिन अमेरिका के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रही हैं, जब वहाँ पे पुलिस वालों ने एक ब्लैक जो है ना वो को मारा है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन आर गोइंग ऑन, और बड़ी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो क्या कहें कि एक किस्म की वायलेंस हो रही है। और आप देखें कि किस तरीके से कौमें अपने उरूज पे जाती हैं और फिर किस तरह जो है ना वो कौमें अपनी ज़वाल की तरफ चली जाती हैं। इसके लिए अक्सर कहा जाता है कि जो कौमें होती हैं ना वो 3 लेवल पे होती हैं। जो पहली लेवल जो होती है, कोई बंदा अजीम काम करता है, मेहनत करता है और वो फिर आला मकाम पे पहुंचता है, फिर उसकी नस्ल आती है। वो नस्ल मेहनत तो नहीं करती, लेकिन उस मेहनत की गवाह होती है। उसको पता होता है कि उसके वालिदैन वगैरह ने कितनी मेहनत और मशक्क़त के साथ उस चीज़ को बनाया है, और वो उसका ख्याल करते हैं। फिर तीसरी नस्ल आती है, फिर उनको ये तो पता नहीं होता कि जो ना हमारे दादा ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन उसको पता है कि हमारे दादा ने मेहनत की थी, फिर उसने जो ना मर्सिडीज़ ख़रीदी, फिर बाबा ने मर्सिडीज़ ख़रीदी, फिर मुझे मर्सिडीज़ मिली है। फिर उसके बाद एक और नस्ल आती, चौथी नस्ल आती है, और उसके जहन में
वो मेहनत, वो आइडियल्स, वो ख्वाब, वो मेहनत, सब चीज़ें चली जाती हैं। बस उसके जहन में एक बदगुमानी आ जाती है कि ये मर्सिडीज़ जो है ना मेरे दादा के पास भी थी, फिर मेरे दादा के पास थी, फिर बाबा के पास से, फिर मेरे पास से, फिर मेरे बेटे के पास होगी। ये मर्सिडीज़ बनी ही ये मर्सिडीज़ बनी ही मेरे लिए है। और ये जब उसके जहन में बदगुमानी आ जाती है तो फिर क्या होता है कि तारीख़ उसको उठाकर गटर में फेंक देती है। इस तरह कौमें उठती हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। तो याद रखें कि दिस इज़ वेयर इज़ दीज डेमोन्स्ट्रेशंस आर गोइंग ऑन इवन इन अमेरिका। क्यों? वेयर देयर इज़ नो जस्टिस देयर कांट बी पीस। हज़रत अली का फरमान है कि आप कुफर पे हुकूमत कर सकते हैं लेकिन जुल्म पे हुकूमत नहीं कर सकते। तो ये याद है 9/11 के बाद जब हुआ था तो एक बंदे से पूछा गया था व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उसने एक सिंपल सेंटेंस कहा था कि व्हेन देयर इज़ नो पीस, नो जस्टिस, देयर इज़ नो पीस। सो दैट इज़ इट ट्रू। इवन आज सिंध के अंदर भी ये जो है ना तहरीक चल रही है डोमिसाइल के हवाले से कि जो है ना वो अपना जो डोमिसाइल जो जेली बनते हैं, जो दूसरों के हुकूक़ के ऊपर जो है ना, ये एक गास्बाना रवायत है। आप मेरिट पे कम्पीट करें, आप अपने हुकूक़ के लिए कम्पीट करें। दूसरों के हुकूक़ को खाना, यूज़रब करना, दूसरों के रिसोर्स को खाना, यूज़रब करना, ये कभी भी चीज़ें, यही है कि मैंने कहा ना, अली ने फरमाया कि आप कुफर पे हुकूमत कर सकते हैं, जुल्म पे नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वो चीज़ें दे ट्रांसलेट इनटू situations where you have these issues. So well, they expect hope. After this demonstrations, parents would avoid smartphone addiction and would give time attention to their children. Okay, अब बच्चे क्या कहते हैं कि इस एहतजाज के बाद उनके जो वालिदैन हैं वो उनकी तरफ तवज्जो देंगे और वो they would stop this demonstrations के बाद they would avoid smartphone addiction से मुराद है नशा। अब ये जो फ़ोन का नशा है, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि बच्चों को गैजेट से फ्री करना है, और आज मैंने आपको बताया कि वालिदैन को भी फ़ोन से फ्री करना है। ये ना कि वालिदैन और मदर्स जो है ना फ़ोन में बिज़ी हों और बच्चे जो है ना वो अपने रहम करम पे। इस वीडियोस में आप देख रहे हैं कि वो जब माँ बच्चे को खाना खिला रही है तो वो अपनी फ़ोन में लगी रहे है। अब चम्मच मुँह में जा रहे हैं, नाक में जा रहे हैं, नोबडी नोज़। फिर जब बच्चे को उठाया कर जा रही है तो भी बच्चा रो रहा है, तो उसको उसकी कोई परवाह नहीं है, वो फ़ोन में गुम है। इससे बच्चों की जो सेहत, उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। व्हाट वी नीड टू, सो पेरेंट्स वुड अवॉइड स्मार्टफोन एडिक्शंस एंड वुड गिव अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। और ये वीडियो क्या कह रही है कि वो अपने बच्चों को अटेंशन देंगे। दे वुड गिव अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन विच अदरवाइज कॉजेज बैड इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ चिल्ड्रन, जो उन बच्चों के कंडक्ट के ऊपर बहुत बुरे असरात डालेगा, such as whining and hyperactivity and frustration। आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर क्या होती है, whining क्या होती है, whining होती है बड़बड़ाना, whining होती है बड़बड़ाना होती है कि अपने मुँह, जब बच्चे जो है ना वो गुस्से में होते हैं, नाराज़ होते हैं तो अपने मुँह बातें करते हैं, दिस इज़ whining। और हाइपर एक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिविटी ये होती है कि जब बच्चे जो है वो अननेसेसरी तौर पे उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। ये हाइपर एक्टिविटी, बच्चे चुप करके नहीं बैठते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, हर टाइम जो है ना हरकतें करना, बिज़ी रहना, अपनी अपनी चीज़ों करना और अजीब किस्म की जो है ना वो हरकतें करना, नींद में डिस्टर्ब होना, ये सब चीज़ें अलामतें होती हैं कि दे आर नॉट बीइंग गिवन अ प्रॉपर कंसंट्रेशन, देयरफॉर दे आर इन ए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अल्टीमेटली दीज प्रॉब्लम्स दे ट्रांसलेट इनटू क्राइसिस। फिर आगे चल के यही बच्चे साइकोलॉजिकल क्राइसिस का शिकार होते हैं जब बड़े होते हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं इस परेशानी के। तो ये देखें, दीज आर द रियली साइकोलॉजिकल इश्यूज व्हाट वी आर फेसिंग। अब ये जो मैं आपको वीडियोस वगैरह दिखा रहा हूँ तो इस टाइम मेरा फोकस क्या है, आपकी सिमेंटिक्स। हमने वर्ड्स को देख रहे हैं, हम वर्ड से एक्सप्लोर करें कि हमने डेमोन्स्ट्रेशंस को कैसे यूज़ करना है, हमने अगेंस्ट प्रीपोजिशन वहाँ पे कैसे आ रहा है, हमने यहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस को देखा, हमने हाइपर एक्टिविटी को देखा, हमने वाइनिंग को देखा। तो सिर्फ ग्रामर तक नहीं अपनी लैंग्वेज को हम महदूद कर रहे हैं, हम सिमेंटिक्स बढ़ाएंगे, सेंटिक्स पे काम करेंगे और फोनेटिक्स पे। और जब ये तलफ़ुज़ प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ इसको गौर से सुने और ये आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि व्हेन यू स्पीक, ओके, एटलीस्ट यू स्पीक विद ए स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। कम से कम कोशिश करें कि आपकी तलफ़ुज़ जो हो वो किस हद तक एडजस्टेबल हो और लोग जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर सकें। दैट इज़ वेरी ट्रू। अब दोबारा आप उस वीडियो को देखें, हाउ द चिल्ड्रन दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स। ओके, Wir sind hier, wir sind laut, wir auf eure Handys schauen. Wir sind laut, weil wir auf eure Handys schauen. Wir sind hier. Here say against excess. They are protesting against excessive use of smartphone.
by their parents, okay, because their parents are using phone excessively. The protest was led by a 7-year-old Emil, okay. That the leader of this protest is this 7-year child, okay. Emil that is going to lead these protests. Ich wünsche I hope that after the demonstrations, the people will spend less time with their cell phone. Okay, this Emil, okay, this Emil Rastage, that is going to ask to convey the parents that उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद उसके parents जो है ना वो phone कम इस्तेमाल करेंगे. dass nach der Demo viele Leute darauf achten, dass sie nicht mehr so And their mobile phones पे कम time देंगे and they will give time to their children. aufs Handy gucken. Now here you see that the parent smartphone addiction, okay, how the mother is busy in her cell phone, and where the food or medicine is going, whether in the mouth of the baby or the nose of the baby, nobody cares, and she is busy in her smartphone. So when you don't give this proper attention to your children and the parents are busy in their phones, okay, that causes very bad impact on the life of the children. Now here see the baby is whining and his hyperactivity are getting frustrated because of that thing. This is whining, you see the baby is crying and his hyperactivity, they are getting frustrated, okay, that's very way, and we should avoid and we give proper time to children. Eltern lassen das Handy aus. So here you can see that how this phone addiction is really a problem for parents as well. And here's Zabel. Zabel also wants to give you a message regarding phone. And yes, Zabel, what do you want to say about phone? Okay. Phone is very dangerous thing, and phone is a gadget. We got to phones, gadgets, phone, laptop, tablet. Everything just like using our gadgets, and we don't want to use gadgets. If we will use gadgets, then our proper manners will be gone and bad manners will become. And we don't want to use gadgets, and we want to study at the time, and don't listen anybody when they say use gadgets, use gadgets, then don't listen. Then complain to father or mother, then they will teach them, then they will not do again. And you have to be very careful. And if you will get grown up, then you may use gadget, but you should wear the eyeglasses too, which one is for the eyesight. If you didn't learn, and then your eyesight will get weak. So thank you very much, Zabel, for this wonderful message. Zabel means to say that if you will use cell phone excessively, your eyesight will get affected. And listen to your parents. He said that television, laptop, they all are gadgets. But don't listen to your brother if he did say this. Use gadgets. Yeah, he means and that if he did disturb you, then do something wrong, then complain to your father, your mother. If any brother or sisters in your family is using gadget or asking you to use the gadget, okay, don't listen to him and complain to your father and parents and mother and father, and we must avoid using these gadgets, okay. So thank you very much on the part of Adil and on the part of me, and by this we will end this wonderful class. This was very nice to talk to you all, and in the next class we would talk about preposition. That is a really interesting area. I hope that you would enjoy my next class. And preposition is my favorite subject. Yeah. At night time, my father was downloading for me, then I do work, and it was looking my
favorite. Yeah, Zabel also attempting these different exercises of degrees of adjective in a proper noun and a common noun and preposition. And there is one game for in the study. Go to the Google and but not that Google. Which one is the better Google? Yeah, he means that whatever the test he is going to take class, okay, and there's a really good website, okay, sabak.pk.com, and they have a very wonderful material on. And in the KG place there will be classes and which class we are going to come here we will be, and if you put that and which one come in to the that playing the game and that you should put Yes, then you should do. That's nice, Zabel. So Then he is he means to Then say. you should do start practice. Then you should start and practice. Then it will be awesome and so excited and the fun. And my brother do like this too. Thank you very But much. first he was a Thank you bad very boy. much, Now Zabel. he's a good boy. Zabel time is up. sabak.pk.com जो है उस पर बहुत अच्छा मटेरियल मौजूद है जो बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, और जो बच्चा भी घरों में मौजूद है वी कैन आल्सो गाइड देम, and I'm also helping him and with that as well. So thank you very much for this wonderful time, and hope we will be in the day after tomorrow we will be on this session with the preposition. Thank you very much.